So going to start the second half. As we have seen in the example, and we just conclude that one. Each party in an exchange should seek to give something that has little utility for him, but that will have great utility for the receiver. In this manner, each exchange can result in the greatest gain for each party. Here, as we have seen previously, that from the buyers and the sellers, everybody is wants to have the more have some gain out of that exchange. So that's why. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अली मोहम्मद सर दोबारा ज्वाइन कर रहा है, वो ज्वाइन नहीं हो रहा, उसका मैसेज आ रहा है बार बार। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। क्लास उसको ज्वाइन नहीं हो रहा, उसका शो नहीं हो रहा है MS टीम पे उसका। अब देखें, ये MS टीम से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो अपने जो है वो क्लास कोड से कर लें या CMS कोड से कर लें। वो फ्रांस से या उससे उसको रब्ता करना पड़ेगा। देयर इज़ वन मोर पर्सन, वो फ्रांस से चेक कर लें, वो आगे फर्दर डिटेल बता देंगे, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज तो जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वो डील करेगा। सर उसकी एब्सेंट लगाइएगा बस आप। ठीक है, चलें लेक्चर को ज़रा कंटिन्यू करने दें। जो भी ऐसे अगर कोई पॉइंट्स हैं लास्ट पे उसको देख लेंगे। अब वी विल टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड फर्दर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ दिस वैल्यू एंड यूटिलिटी। बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है, देन वी विल अप्लाई दैट ऑन आवर real scenario or the engineering atmosphere. Now, when a car becomes stuck in the snow, only a slight push may be required to remove or shift it. The slight effort involved in the removal of push may have very little utility for the person giving it, so little that he expects no more compensation than a friendly gesture. सिंपल सा है कि लेट्स से कि आप किसी जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फॉर योर एग्ज़ाम्स आप की गाड़ी स्टक कर जाती है एंड यू रियलाइज़ कि अगर इसको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो दैट विल स्टार्ट एंड यू कैन मूव. So if someone just help you and give that push and you able to go for your exams or for the interview, so this whole act has a great utility for you because that has basically enable you to appear in the interview or to in the exams, and may have very little utility for the person who is actually helping you. That person just wants that you may say jazakallah khair or thank you or just give a friendly gesture, and that may be enough for that person as far as the satisfaction from the satisfaction point of view is concerned. That is here it is written whatever I have told you. In the same way, the aim of much sales and other research is to find products that not only will have great utility for the buyer, but that can be supplied at lower cost. This is how have low utility for the sellers. Now here it is the objective of the whole discussion that we need to find the ways as far as from the sales point of view is concerned, that whatever products we build that have great utility, means that the people should be satisfied when they are going to consume or use that products as far as the buyers are concerned. But the same products must have very low utility for the sellers, and whatever is the difference between or the resources that are required to provide that product must be very less. In this way that you are spending less resources and spending less amount, but on the other hand from the buyers, if that person have the great utility in terms of the satisfaction, so that person will be more satisfied and will be very happy to pay certain amount that is charged for it.
Here we have in the very first slide that how we can increase the utility. We will little bit discuss it about that how we can increase the utilities here again after this paragraph. The difference between the utility that a specific good or service has for the buyer and the utility it has for the seller represents the profit or the net benefit that is available for division between buyer and seller. This difference may be called as the range of mutual benefit in exchange. So what is the range of mutual benefit? That if a buyer has certain utility for an item, the seller will also has certain utility for that item, but the utilities or the satisfaction that they are getting out of that product are different. So this difference is basically that will give us or enable us to earn the profit or having the benefit, and that is called as the range of mutual benefit. Now I was talking about how we can increase the utility as far as the consumer goods are concerned. Can anyone further answer me that how we can increase the utility, as we have talked about much regarding the utility, how we can apply this concept when we are talking about from the engineer's perspective? लेट्स से हम मोबाइल की बात करते हैं, सेल फोन की बात करते हैं, तो कैसे यूटिलिटी इंक्रीज करेंगे हम? फ्रॉम द इंजीनियरिंग और टेक्निकल पर्सपेक्टिव. Can anyone answer how we can increase the utility of a cell phone by the application, by engineering application? देखें, we can increase the utility of mobile phone by inserting more features and functions in that particular product. जैसे कि हमारे जो ये स्मार्टफोन्स हैं, इसमें वी हैव डिफरेंट फंक्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम. उसमें फ्लैश लाइट, उसमें कैमरा, उसमें नेट, उसमें बहुत सारी चीज़ें. तो वो उसकी वजह से क्या है कि उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, कि जो हम उससे सेटिस्फेक्शन है, लेवल है, दैट इज़ बीइंग इंक्रीज्ड. तो इस तरह से हम लेकिन इन फीचर्स, फंक्शंस और इस सारे को अचीव करने के लिए दैट रिक्वायर रिसोर्सेज. ऑफ कोर्स के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं. तो एम ये है कि वो रिसोर्सेज जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो कम से कम हो, लेकिन जो उसकी वजह से चेंज है वो मैक्सिमम हो. एक पॉइंट तो ये ज़हन में रखना है. क्योंकि जितनी ज़्यादा फिर यूटिलिटी होगी उतना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और दैट पर्सन और एंड पे व्हाट वी वांट कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड, और फिर वो उसे बाय करेगा और आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहेगी. सेकंड थिंग इज़ कि हाँ, ये जो हमने कहा था कि यूटिलिटी का कंसेप्ट भी रिलेटिव है. वो रिलेटिव कैसे होगा कि लेट्स से कि एक ही मोबाइल के एक फ़ीचर की हम बात कर लेते हैं. लेट्स से कि फ्लैश लाइट है उसमें आपके पास ना, मोबाइल में आपने एक ऐड कर दिया. अब वो जो आपका फ्लैश लाइट है उसका मे बी फॉर ए पर्सन ए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो, उसका यूज़ हो. यानी मे बी दैट पर्सन इज़ लिविंग इन एन एरिया जहाँ लोड शेडिंग है, रात को वो मोबाइल से ही टॉर्च के तौर पे उसको यूज़ कर लेता है. तो उसके नज़दीक उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिसने कभी जो है वो फ्लैश लाइट को या टॉर्च को, जो मोबाइल के अंदर फीचर है उसको यूज़ नहीं किया. तो इस वजह से वो उसको पर्टिकुलर आइटम का जो है उसको उसके नज़दीक यूटिलिटी उसकी कम होगी. दैट मे बी अ फैक्टर जो कि यूटिलिटी को अगर हम कंपेयर करें कि जो हमने कहा था कि ये भी रिलेटिव होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. तो इस अंदाज से आपकी जो है वो फिर वेरी कर जाएगा. इसी तरह बहुत से और फीचर्स, फंक्शंस, चीज़ें हैं, लेकिन
ओवरऑल हम ये एफर्ट क्यों कर रहे हैं? टू इंक्रीज द यूटिलिटी. ठीक है. अच्छा, now we will cover this concept of utility from marketing perspective, and then at the end we will again conclude कि कैसे हम इसको utility को increase कर सकते हैं. Now it is not uncommon for an equipment salesperson to call on a prospective customer, describe and explain a picture of equipment, status, price, offer it for sale and have the offer rejected. यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं, आगे उसी को कहा गया. लेकिन बैकग्राउंड इसका क्या है कि आपने देखा होगा कि अक्सर द सेल्स पर्सनस दे पुट देयर एफर्ट, और उनके एफर्ट सारी की सारी क्या होती है कि वट एवर दे आर सेलिंग दैट शुड बी सोल्ड आउट, कि जो आइटम वो सेल करना चाह रहे हैं वो उसको सक्सेसफुल रहें उसकी सेल में. लेकिन होता क्या है कि यूजली अगर कोई सेल पर्सन है, उसने किसी आइटम को शो किया, प्राइस जो है ऑफर की, तो जो द पर्सन हु इज़ लिसनिंग और द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वो क्या कहता है कि आई डोंट वांट दैट वन, कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो जब ये बात होती है कि द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जस्ट से दैट आई डोंट नीड दैट वन, वो क्या सोच रहा होता है? दिस इज अ कंक्रीट एविडेंस दैट द इक्विपमेंट आइटम डज नॉट पोसेस सफिशिएंट यूटिलिटी एट द मोमेंट टू इंड्यूस द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू बाय इट. इस स्टेज पे वो ये फील कर रहा होता है कि इस प्रोडक्ट की जिसे सेल्स पर्सन सेल करना चाह रहा है उसके नज़दीक कोई यूटिलिटी नहीं है या बहुत कम यूटिलिटी है. लेकिन क्या सेल्स पर्सन जो है अपनी जो एफर्ट है उसको छोड़ देता है? ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, द सेल्स पर्सन कीप ऑन इंसिस्टिंग एंड कीप ऑन एक्सप्लेनिंग द फीचर्स, फंक्शंस, द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो क्या कह रहा होता है कि कस्टमर इसको बाय कर ले. अब मे बी देर इज़ अ सिनेरियो कि पहले उसी कस्टमर ने या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ने उस ऑफ़र को या उस आइटम को बाय करने से इनकार कर दिया, लेकिन आफ्टर सम सेल्स टॉक द सेम पर्सन सेड दैट ओके आई विल बाय दैट वन. तो अब जब उसने ये कहा कि आई विल बाय दैट वन, तो यहाँ पे आइटम में तो कोई चेंज नहीं हुई. ठीक है. वो प्रोडक्ट जो पहले वो सेल करना चाह रहा था वही प्रोडक्ट अब है. तो चेंज कहाँ पे आई है? द लास्ट सेंटेंस गिव्स इट्स आंसर. मैंने क्वेश्चन ये किया है कि सेल्स पर्सन आप अपनी आइटम को सेल करना चाहता है, दैट पर्सन एक्सप्लेन्स द फीचर्स, फंक्शंस एंड तो पहले तो ऑफर जो है द कस्टमर जस्ट रिजेक्ट कि मुझे ये आइटम नहीं चाहिए, लेकिन वो फर्दर कीप ऑन इंसिस्टिंग एंड कीप ऑन एक्सप्लेनिंग एंड ट्राइंग द कस्टमर टू बाय दैट वन. तो आफ्टर सम टाइम वो कस्टमर जो है जो उसे परचेज़ करने से इनकार कर रहा होता है उसे परचेज़ कर लेता है. अब आइटम वही है जिससे पहले जो है वो कस्टमर ने कहा है कि मुझे नहीं चाहिए, बाद में उसको बाय कर लेता है, कहता है कि हाँ इसकी ठीक है, ओके आई बाय दैट वन. तो प्रोडक्ट में तो कोई चेंज नहीं है. चेंज कहाँ पे आई? There must have been a change in the customer's attitude or regard for it. जब सेल्स स्टॉक जारी रही तो द कस्टमर फील्स और एक्सेप्ट दैट थिंग दैट ओके दिस प्रोडक्ट हैज सर्टन यूटिलिटी फॉर हिम और हर. उसी आइटम की वो यूटिलिटी फील करना शुरू कर देता है. उसकी इन अदर वर्ड्स उसकी नीड जो है वो उसको फील करना शुरू कर देता है. जैसे ही वो नीड फील करता है तो वो उसको बाय कर लेता है. इट मीन्स के सेल्स एफर्ट जो है उसकी भी उसके रिजल्ट्स हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ बाइंग दैट आइटम हमने देखे. इसकी आगे फर्दर बात भी आ रही है. नाउ what brought about the change? A number of reasons could be advanced. It is usually said that the salesperson persuaded the customer to buy. In other words, the salesperson induced the customer to believe something, namely that machine has sufficient utility to justify its purchase. कि
एंड पे सेल्स पर्सन जो है सक्सेसफुल रहा किस बात पे, कस्टमर को बिलीव करने पे कि दिस प्रोडक्ट हैज सर्टेन यूटिलिटी एंड दैट टू जस्टिफाई इट्स परचेज. Now, there are many aspects to persuasion. It may amount only to calling the attention to the availability of an item. A person cannot purchase an item he or she does not know exist. अब यहाँ पे बहुत सारे persuasion के aspects होते हैं. जो सबसे कम क्या है कि सिर्फ किसी को ये बताना कि एक पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट करती है. दैट्स वाई इन द सुपर स्टोर्स यू हैव सीन दैट जिस आइटम की सेल उन्होंने इंक्रीज करनी होती है उनको जो है वो जो फ्रंट जो है वो शेल्फ्स पे ले आते हैं. ठीक है. वाई कि अगर एक आइटम का द पीपल दे उनको वो नज़र आएगी एंड दे विल पिक एंड दे विल सी द इंफॉर्मेशन एंड देन दे विल बाय दैट वन. अगर कोई आइटम हिडन है बैक रैक्स पे है तो देर आर लेस चांसेस दैट द पर्सन विल बाय दैट वन. तो सबसे पहले तो इन्हीं मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज या जो सेल्स की स्ट्रेटजीज है उसका भी प्रोडक्ट की सेल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. That's why the subject of sales and marketing is very important from as far as the item sales and is concerned. Now it is observed that persuasive ability is much in demand and it is usually richly rewarded. अल्टीमेट टारगेट क्या होता है किसी भी एफर्ट का? हम स्टार्ट से सब्जेक्ट के कर रहे हैं कि वो आइटम आपकी सेल होनी चाहिए. देयर शुड बी सम कस्टमर फॉर दैट वन. अब उसमें दोनों एंगल से हमने एफर्ट करनी है. फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव कि हम उसमें फीचर्स और फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं. सेकेंडली हम मार्केटिंग या सेल्स एफर्ट को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केटिंग और सेल्स एफर्ट के रिजल्ट्स में भी द पीपल दे विल बाय दैट वन. क्योंकि हमने ये देखा कि कोई भी कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर उसी वक्त आइटम बाय करेगा जब वो ये फील करेगा कि दिस आइटम हैज़ सर्टन यूटिलिटी. तो सम टाइम तो उसको खुद से ये रियलाइज़ हो जाता है कि इसकी यूटिलिटी है उस आइटम को देख के पढ़ के, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को करके देख के. लेकिन सम टाइम उसको फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है टू बाय दैट वन. ठीक है. इसी पॉइंट को यहाँ पे भी लिखा हुआ है. Persuasion as it applies to the sales of goods is of economic importance to the industry. Manufacturers must dispose of the goods they produce. कोई भी प्रोडक्ट हैं, टेक्निकल हैं, अदरवाइज हैं, तो उनका डिस्पोज करना यानी देयर शुड बी सम कस्टमर फॉर दैट वन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या होगा कि आइटम की इन्वेंट्री बनती जाएगी. दे कैन इंक्रीज द सेलेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स by building into them greater customer appeal in terms of greater usefulness, greater durability, greater beauty, or they may elect to accompany their products to market with greater persuasive effort in the form of advertising and sales promotion. Here now you can see that जिसको मैं already भी explain कर चुका हूँ कि engineering effort भी required है और marketing effort या sales effort भी required है. लेकिन यहाँ पे एक और फर्दर हिडन पॉइंट यू कैन से कि जो पर्टिकुलरली जो सेल्स पर्सन भी एफर्ट करेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द एफर्ट दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द engineers in terms of having the greater usefulness or greater durability or greater beauty. कि अगर उसमें आइटम में लेट्स से कि फीचर्स और फंक्शंस होंगे तो ही सेल्स पर्सन उसको एक्सप्लेन कर सकता है. ठीक है. अगर आपके आइटम में कोई जो है फीचर्स फंक्शन नहीं है तो देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द सेल्स पर्सन ऑल्सो टू ट्राई टू मोटिवेट टू द कस्टमर. सो दैट्स वाई बैक एंड पे इंजीनियरिंग एफर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके प्रोडक्ट में जो है वो उसको इस तरह से बनाया जाए, डिज़ाइन किया जाए कि उसमें ये चीज़ें जो हैं वो विजिबल हों और ताकि सेल्स पर्सन भी अपनी एफर्ट जो है वो कर सके. Now either plan will require expenditure and both are subject to law of diminishing returns. It is an interesting study in economy to determine what level of perfection of product and sales effort will be most profitable. So law of diminishing return क्या है? You can search on the net as well. Here जिस perspective में हम इसको पढ़ रहे हैं वो ये है कि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को हमने देखना होता है कि हमने अपनी
प्रोडक्ट की परफेक्शन पे कितनी एफर्ट करनी है, एफर्ट इन टर्म्स ऑफ हेयर यू कैन अंडरस्टैंड द कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज, और आपने सेल्स या मार्केटिंग पर कितनी एफर्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज। क्योंकि अगर आप किसी आइटम को में फीचर्स फंक्शंस ऐड करते हैं तो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यू नीड अमाउंट टू स्पेंड, ठीक है, राइट फ्रॉम द जिसको हम R&D कह देते हैं, और उसके बाद उसके लिए रिसोर्सेज एंड देन उसकी मैन्युफैक्चर है, एवरी स्टेप रिक्वायर द एक्सपेंडिचर्स। ऑन द अदर एंड अगर आप मार्केटिंग कहते हैं कि मार्केटिंग के ज़रिए आप यूटिलिटी इंक्रीज़ करेंगे, तो मार्केटिंग भी आपकी जो है दैट कॉस्ट सेल्स एफर्ट्स जो हैं वो आपकी कॉस्ट कर रही होती हैं। तो आपने ये देखना है कि कितनी जो है एफर्ट या रिसोर्सेज जो हैं प्रोडक्ट की परफेक्शन पे लगाने हैं, और कितने बाद में जो है वो सेल्स या मार्केटिंग पे एक्सपेंड होंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी नहीं है कि आप सारे के सारा फोकस जो है वो आइटम की परफेक्शन पे रखें और आपके पास फिर सेल्स और मार्केटिंग के लिए कोई बजट ही ना हो, एंड वाइस वर्सा कि आप सारा मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं और पीछे आपके प्रोडक्ट में कोई भी फीचर्स और फंक्शन नहीं है, तो भी आपको प्रॉपर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। So that is basically we can increase the sales of our product. तो यहाँ पे एक दो फर्दर पॉइंट्स फ्रॉम आप लोग जहन में रख सकते हैं फ्रॉम योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कि जहाँ आपने यू हैव टू पुट एफर्ट, आप अपने जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर वो फिज़िकल आइटम्स हैं, क्योंकि फ़िज़िकल आइटम से समझना आसान है, तो आप उसके ऑफ कोर्स के यू विल फोकस ऑन द टेक्निकल डिटेल्स, उसके वर्किंग पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। एट द सेम टाइम आपने जो एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए कि उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसके हाउ इट लुक लाइक, और उसका एक्सटर्नल किस तरह का है, कंफर्ट कितनी ज़्यादा है उसमें, तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करना दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एट द सेम टाइम आप अपने जहन में उस प्रोडक्ट की, अगर आप कमर्शियल करना चाहते हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको देयर यू शुड हैव सम एक्सपेंस फॉर द मार्केटिंग और सेल्स और द सेल्स। अक्सर ये होता है कि फ्रॉम द टेक्निकल साइड द प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड, बट उसका जो आउटलुक है वो इतनी अच्छी नहीं होती, या उसके जो एक्सटीरियर है उस पर फोकस इतना ज़्यादा नहीं होता, या उसकी मार्केटिंग इस तरह से नहीं की जाती, दैट्स वाई कि वो आपका फिर एक्चुअली जो सक्सेस आप चाह रहे होते हैं वो नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस अपने सिर्फ उस पे टेक्निकल डिटेल्स पे और उस प्रोडक्ट बनाने पे होता है। हाउ द कस्टमर विल रिएक्ट, और कस्टमर के पॉइंट से कस्टमर किन चीज़ों को देखेगा और वो उस क्या चीज़ उसको क्या अपील करता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो कस्टमर की साइकोलॉजी है उसको समझना, उसको जानना और उसको टारगेट करना, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी जो है we can run our business. Anything you want to discuss from this lecture? कोई बात पूछनी हो, कोई डिस्कशन हो, कोई पॉइंट फर्दर elaboration required हो? Anyone want to say anything, to ask anything regarding this, the concept of value and utility, and how we have covered and explained, और इसका जो इंजीनियरिंग के साथ इसका या हमारी प्रोडक्ट्स के साथ क्या लिंक बनता है, आई हैव ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन दैट वन, कि हमारा यूज़ कैसे होगा, कैसे आइटम्स जो हैं उसकी सेल्स हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। So if there are no questions, I am going to end this lecture. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.
अल्लाह हाफिज सर।